بار اندر جا کر ہمیں اس لڑکی کو دیکھ لینا چاہیے، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ آپ کو بھائی کی حالت کا پتہ ہے، اس کے باوجود آپ اسے نظر انداز کر رہی ہیں۔ میں اماں کی کب سے منتیں کیے جا رہی تھی، لیکن اماں تھی کہ میری بات سننے کو راضی ہی نہیں تھی۔ اب جب چوتھی بار میں نے اماں سے یہی بات کی تو انہوں نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا کہ تو اپنے کام سے کام رکھ، جا اپنے کمرے میں جا کر سو جا، اور کوئی کام نہیں ہے تجھے، مجھے پتا ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اماں کے بیزار سے لہجے پر مجھے شدید غصہ آیا اور افسوس بھی ہوا، نہ جانے وہ اتنی کٹھور کب سے ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی بہت ہی برے طریقے سے چلا رہی تھی اور مدد کی درخواست کر رہی تھی۔ میں اس کی یہ چیخیں نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، اس لیے فوراً سے بھائی کے کمرے کی طرف بڑھی، لیکن اماں نے بیچ میں آ کر مجھے روک لیا اور کہا کہ اگر تو نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو میں تیرا بہت برا حال کروں گی، جا اپنے کمرے میں چلی جا۔ یہ کہہ کر مجھے کمرے میں دھکا دے دیا اور خود باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ اس لڑکی کی چیخیں میرے کمرے تک سنائی دے رہی تھی اور میں بالکل ہی بے بس ہو چکی تھی، کسی طرح سے اس کی کوئی مدد نہیں کر پا رہی تھی، اور اماں تھی کہ مزے سے ایک طرف بیٹھی اس کی چیخیں سن رہی تھی۔ اماں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، حالانکہ میں نے اماں کو بہت منع کیا تھا کہ بھائی کی شادی مت کرو، بھائی کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اس کی شادی ایک ایسی لڑکی سے کی جائے جو بالکل ہی نارمل ہے، وہ بھائی کے ساتھ آ کر کیسے رہے گی۔ لیکن اماں کا کہنا تھا کہ تیرے بھائی کی شادی کروں گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پتہ نہیں لوگ اس طرح کی باتیں کہاں سے سن لیتے ہیں اور ان باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ لڑکا اگر بگڑ گیا تو اس کی شادی کر دو، وہ ٹھیک ہو جائے گا، اگر وہ بیمار ہے تو اس کی شادی کر دو، ٹھیک ہو جائے گا، اگر پاگل ہے تو بھی اس کی شادی کر دو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہ جانے لڑکی کا کیا قصور ہوتا ہے جو اسے لڑکے کو سدھارنے کے لیے لگا دیا جاتا ہے۔ میں ان تمام چیزوں کے سخت خلاف تھی، لیکن میری اماں کے خیالات مجھ سے بہت مختلف تھے۔ وہ ہمیشہ سے کہتی تھی کہ میں تیرے بھائی کی شادی بہت ہی خوبصورت لڑکی سے کروں گی، اور بھائی کو بھی یہی کہتی کہ تیرے لیے تو چاند سے دلہن لے کر آؤں گی۔ میں اماں سے کہتی اس طرح کی باتیں کیوں کرتی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ بھائی کی شادی نہیں ہو سکتی ہے؟ تو اماں غصہ ہو جاتی اور کہتی کیوں، تیرے بھائی میں کیا کمی ہے جو اس کی شادی نہیں ہو سکتی، خبردار جو تو نے آئندہ اپنے منہ سے ایسی بات نکالی۔ میری یہ بات سن کر تو میرا بھائی بھی ناراض ہو جاتا تھا، وہ تو نادان تھا، اپنی عمر سے کئی سال پیچھے تھا، لیکن اماں تھی کہ وہ اسے ہمیشہ شادی کی امید دلاتی رہتی اور وہ بھی ضد کرنے لگ جاتا۔ اس بیچارے کو تو شادی کا مطلب بھی نہیں پتا تھا، ایک انسان جو ذہنی طور پر معذور تھا، جسے سنبھالنے کے لیے ہمیشہ کسی نہ کسی کی ضرورت رہتی، اس کی شادی کس طرح سے کی جا سکتی تھی؟ یہ سوچ سوچ کر میں پریشان ہوتی رہتی تھی۔ جب اماں نے بھائی کے لیے رشتے ڈھونڈنا شروع کیے تو میں نے اماں کو بار بار سمجھانے کی کوشش کی کہ کسی لڑکی کی زندگی تباہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیوں زبردستی کسی کو بھائی کی زندگی میں داخل کر رہی ہو؟ لیکن اماں نے میری ہر بات نظر انداز کر دی۔ اماں جانتی تھی کہ کسی بھی اچھے گھرانے سے میرے بھائی کو لڑکی نہیں ملے گی، اس لیے اس نے ایک فیصلہ کیا اور ایک دن مجھ سے کہا کہ دیکھنا جلد ہی میں تیرے بھائی کے لیے ایک اچھی لڑکی ڈھونڈ کر لے آؤں گی۔ مجھے لگا اماں ایسے ہی بول رہی ہے کیونکہ بھائی کی حالت تو ٹھیک نہیں تھی اور کوئی بھی اس سے شادی کو راضی نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ دن بعد ہی اماں خوشی خوشی میرے پاس آئی اور بولی دیکھ یہ لڑکی پیاری ہے نا۔ اماں کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی، وہ لڑکی واقعی میں بہت خوبصورت تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ یہ کون ہے اور آپ اس کی تصویر مجھے کیوں دکھا رہی ہیں؟ تو اماں مسکراتی ہوئی بولی میں نے اس لڑکی کو تیرے بھائی کے لیے پسند کیا ہے، اب میں جلد سے جلد اس لڑکی سے تیرے بھائی کی شادی کر دوں گی، پھر دیکھنا محلے والوں اور خاندان والوں کا منہ کس طرح سے بند ہو جائے گا۔ ہمیشہ یہی بولتی رہتی ہے نا تیری تائی کہ تیرا بیٹا تو ذہنی معذور ہے، اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا، اب دیکھنا کتنی خوبصورت لڑکی اس کے لیے لے کر آؤں گی، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اماں کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی کہ اماں نہ جانے کس طرح کے منصوبے بنا رہی ہیں، خاندان والوں کو نیچا دکھانے کے لیے ایک لڑکی کی زندگی کو تباہ و برباد کرنا چاہ رہی ہیں۔ وہ لڑکی کسی یتیم خانے میں ہی بڑی ہوئی تھی، اس لیے اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ اماں اس بات کا پورا فائدہ اٹھانے کے موڈ میں تھی، اگر اس لڑکی کو یہاں لے آتی اور بھائی سے اس کی شادی کروا دیتی تو کل کو اگر کچھ بھی ہوتا تو اماں سے کوئی سوال کرنے والا نہیں تھا، اس لیے اماں اتنی بے فکر تھی۔ میرا بھائی ویسے بھی ذرا سی بات پر ناراض ہو جاتا تھا اور چیزیں اٹھا کر پھینکتا تھا۔ اماں کا یہ فیصلہ مجھے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ دوسرے دن ہی اماں اس لڑکی سے ملنے یتیم خانے میں چلی گئی، واپس آئی تو بہت خوش تھی، کہنے لگی کہ میں نے اس لڑکی سے کہا ہے کہ میں تمہیں رہنے کے لیے گھر دوں گی اور خاندان بھی دوں گی، بس تمہیں میرے بیٹے سے شادی کرنی ہوگی۔ پتہ نہیں اماں نے اسے کیا کیا کہہ کر مجبور کیا ہوگا، لیکن بہرحال اس لڑکی نے ہاں کر دی تھی۔ میرا دل کیا کہ کسی طرح سے اس لڑکی سے جا کر ملوں اور حقیقت سے آگاہ کروں کہ اپنی زندگی کو یوں تباہ مت کرے۔ میں خود بھی ایک لڑکی تھی اور اچھے سے سمجھ سکتی تھی کہ ذہنی طور پر معذور انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کا کیا مطلب ہے۔ اماں تو خود غرض بن رہی تھی، لیکن میں مطلبی نہیں بن سکتی تھی، اس لیے میں نے کسی طرح سے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اماں کو پتا چلا اماں مجھ پر خوب چلائی اور غصہ کیا اور کہا کہ تجھے اپنے بھائی سے بالکل بھی پیار نہیں ہے، اس لیے اس کا گھر بسنے نہیں دے رہی، کیسی بہن ہے تو۔ اماں نے اور بھی نہ جانے مجھے کیا کچھ کہا۔ ہماری لڑائی کی آوازیں آس پڑوس میں بھی جا رہی تھیں۔ پڑوس کی عورت ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی کیا ہوا، کیوں اپنی بیٹی پر چلا رہی ہو؟
وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، تمہیں خود سوچنا چاہیے کہ تمہارا بیٹا شادی کے قابل نہیں ہے تو تم اس کی شادی کیوں کر رہی ہو؟ کسی معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر کے کیا ملے گا؟ تمہاری اپنی بھی تو ایک بیٹی ہے، کیا اس کی شادی کسی ذہنی مریض کے ساتھ کر سکتی ہو؟ یہ سن کر اماں چلانے لگی اور بولی، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کے بارے میں ایسی بات کہنے کی؟ وہ میرا بیٹا ہے اور وہ ذہنی طور پر بالکل ٹھیک ہے، تمہیں کیا پتا؟ تم تو کچھ بھی کہہ رہی ہو، تم نے تو اپنے بچوں کی شادیاں کر دی ہیں، تمہیں میرا دکھ کیا پتا؟ یہ کہہ کر اماں رونے لگ گئی۔ میں فوراً سے اماں کے پاس آئی اور کہا کہ اماں آپ یوں روئے مت، لیکن آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں نا کہ آپ جو فیصلہ لے رہی ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ پھر کافی دیر تک میں اماں کو منانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اب اماں نے اپنا فیصلہ نہ بدلا۔ اماں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی بہت ہی دھوم دھام سے کروں گی، ساری دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اماں کو اب کوئی بھی نہیں روک سکتا، انہوں نے ٹھان لی ہے تو وہ یہ سب کر کے ہی رہیں گی۔ ان کے نزدیک صرف اور صرف اپنے بیٹے کی خوشی اہم تھی، کسی اور کی زندگی تباہ ہوتی ہے یا نہیں انہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ انہوں نے زبردستی مجھے بھی خاموش کروا دیا۔ محلے میں اگر کوئی کچھ بھی کہتا تو اماں اسے 100 باتیں سناتی، اس لیے کسی کے اندر ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اماں کے سامنے کچھ کہے۔ خاندان والے بھی آ کر طرح طرح کی باتیں کرنے لگ گئے، لیکن اماں سب کی باتیں نظر انداز کر کے شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ شادی کے لیے اماں نے ادھر ادھر لوگوں سے قرضہ اٹھایا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اماں اتنا دکھاوا کس لیے کر رہی ہیں، حالانکہ ہمارے حالات بالکل بھی اچھے نہیں تھے، کرائے کے گھر میں رہتے تھے اور کمانے والا گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ابا کی پینشن پر ہی گھر کا خرچہ چلتا تھا، پینشن بھی تھوڑی سی ہی تھی۔ اتنی مہنگائی میں پہلے ہی ہمارا خرچہ اتنی مشکل سے چل رہا تھا، اور اوپر سے اماں جگہ جگہ سے بھاری رقم قرضے کے طور پر اٹھا رہی تھی۔ نہ جانے یہ قرضہ ہم کیسے اتاریں گے، میں تو یہ سوچ سوچ کر ہی پریشان ہو رہی تھی۔ اماں نے تو پیسوں کی تنگی کی وجہ سے ہی میری پڑھائی بھی رکوا دی تھی، اور اب یوں پانی کی طرح پیسہ بہانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ بھائی کی شادی کے تیاریوں کے دوران اماں نے مجھ سے کہا کہ دیکھنا میں تیری شادی اس سے بھی شاندار کروں گی، تو پریشان مت ہو، تب تک ہم اپنا سارا قرضہ اتار دیں گے اور میں پھر تیری شادی کی تیاریاں شروع کر دوں گی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں آپ ذرا ذرا سی باتوں پر غصہ کرنے لگ جاتی ہو، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ ہم یہ قرضہ کیسے اتاریں گے؟ نہ تو ہمارے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ ہے اور نہ ہی اتنے پیسے ہیں۔ آپ نے سوچا ہے اگر ہم قرضہ نہ چکا سکے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اماں بولی، تو اتنا فکر کیوں کرتی ہے، میں ہوں نا، میں سب کچھ کر لوں گی۔ اماں تو ایسے بول رہی تھی جیسے اماں کے پاس اچھی خاصی جائیداد موجود ہو، پتہ نہیں دکھاوے کے لیے وہ اتنی اہم چیزوں کو نظر انداز کیوں کر رہی تھی۔ شادی کی تیاریوں کے دوران اماں نے مجھے بھی شاپنگ کے لیے جانے کو کہا، لیکن میں نے اماں کو صاف منع کر دیا اور کہا کہ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی ہوں، آپ کو جو کچھ کرنا ہے خود ہی کریں۔ اماں بولی، ٹھیک ہے تیری مرضی، اور پھر وہ بازار جا کر میرے لیے بھی کچھ کپڑے وغیرہ خرید کر لے آئی۔ اماں اتنی زیادہ فضول خرچی کر رہی تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس مہینے کا راشن کیسے آئے گا، کیونکہ سارے پیسے تو اماں نے شادی کی تیاریوں میں ہی لگا دیے تھے، پیچھے کوئی بھی پیسہ نہیں بچا تھا۔ اماں نے بڑا سا ہال بک کروایا تھا اور شادی کے کارڈ بھی چھپوائے تھے۔ میرا بھائی یہ سب دیکھ دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا، اس کے لیے تو یہ سب کھیل تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اسے نیا کھلونا دے دیا گیا ہو۔ شادی سے 2 دن پہلے ہی اماں نے اس لڑکی کو یتیم خانے سے گھر پر بلوا لیا۔ میں اس لڑکی سے مل کر بہت پریشان ہو گئی، وہ بہت ہی معصوم نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اچھے سے جانتی ہو کہ میرا بھائی پاگل ہے، تو تم اس سے شادی کے لیے راضی کیوں ہوئی ہو؟ ابھی بھی وقت ہے، تم اس شادی سے انکار کر دو۔ میری بات سن کر اس لڑکی نے کہا کہ میں انکار نہیں کر سکتی ہوں، اگر میں نے انکار کیا تو یتیم خانے کی مالکن مجھے کسی امیر آدمی کو بیچ دے گی، وہاں پر کیا کچھ ہوتا ہے تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ میں بہت مشکلوں سے اپنی عزت بچا کر یہاں پر آئی ہوں، تمہاری اماں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا اور وہ میری مدد کریں گی، اس لیے میں اس شادی پر راضی ہوئی ہوں۔ یہ شادی تو صرف اور صرف ایک دکھاوا ہے، حقیقت میں مجھے ایک پناہ گاہ چاہیے تھی جو تمہاری اماں نے دینے کا وعدہ کیا۔ اس کی بات سن کر مجھے تھوڑی بہت تسلی ہوئی کہ اماں اسے بھائی کے پاگل پن سے بچا کر رکھیں گی، یہ جان کر میں نے سکھ کا سانس لیا۔ اماں نے شادی کا سارا انتظام مکمل کر لیا تو مجھ سے کہنے لگی، تو بھی دلہن کے ساتھ جا کر پارلر میں تیار ہو جانا، شادی میں بہت سے لوگ آتے ہیں، اگر کسی نے تجھے پسند کیا تو رشتے کی بات چلا دوں گی۔ میں نے اماں سے کہا مجھے اس سب کی ضرورت نہیں ہے، ابھی فی الحال آپ اس شادی پر دھیان دیں۔ اماں نے دلہن کو بہت ہی اچھے پارلر سے تیار کروایا تھا۔ اماں چاہتی تھی کہ لوگوں کے سامنے دلہن بہت ہی خوبصورت لگے، اور واقعی میں وہ لڑکی تیار ہو کر اور زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ پہلے ہی وہ حد سے زیادہ معصوم دکھتی تھی، اور جب وہ تیار ہوئی اور دلہن کے روپ میں ہال میں داخل ہوئی تو سب کی آنکھیں اس کی طرف لگ گئیں، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی پری آ گئی ہے۔ اماں مسکرا اٹھی اور کہنے لگی، دیکھا میں نے کہا تھا نا، دلہن کو دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ۔ واقعی میں وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اماں اس کے استقبال کے لیے میرے ساتھ دروازے پر ہی کھڑی تھی، تبھی ہمارے ساتھ کھڑی ایک عورت کہنے لگی، لڑکی ہے تو بہت خوبصورت، لیکن بیچاری کی قسمت دیکھو، ایک پاگل سے اس کی شادی ہو رہی ہے۔ یہ سن کر اماں کو شدید غصہ آ گیا۔ میں جانتی تھی کہ جب اماں کو غصہ آتا ہے تو وہ آس پاس کچھ بھی نہیں دیکھتی، اس لیے فوراً سے میں نے اماں سے کہا کہ اماں آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، یہ شادی کا ماحول ہے، اگر آپ نے کوئی بھی جھگڑا کیا تو ساری شادی خراب ہو جائے گی۔
मेरी बात सुनकर अम्मा ने बमुश्किल खुद पर कंट्रोल किया, वरना उन्हें उन औरतों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था जो तरह तरह की बातें बना रही थीं। मेरी ताई वहां पर आई और कहने लगी कि तुम लोगों ने तो बहुत ढूंढ कर लड़की को फंसाया है, न जाने ऐसा क्या बोला है जो वो इस पागल से शादी के लिए राजी हो गई है। मैं और अम्मा बिना उन्हें कोई जवाब दिए वहां से चले आए। लोगों की बातें मुझे भी बहुत बुरी लग रही थी। बेशक मेरा भाई जहरी मरीज था और अम्मा यूं उसकी शादी करके गलती कर रही थी और मैं भी इसके खिलाफ थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि लोग इस तरह से हमारी बेइज्जती करें और मेरे भाई के बारे में इस तरह की बातें करें। लोग उसका मजाक बनाते थे, ये सब हमसे बर्दाश्त नहीं होता था। अम्मा ने जल्दी जल्दी खाना खुलवा दिया ताकि लोगों का ध्यान खाने की तरफ हो जाए। अम्मा ने खाने में हर चीज बहुत ही उम्दा बनवाई थी। हर कोई तारीफें कर रहा था। लोग भी इतने अजीब होते हैं, एक पल में बेइज्जत करते हैं और दूसरे पल में तारीफ करने लग जाते हैं। यही तो जिंदगी है। अम्मा ने पूरे खानदान और सारे मोहल्ले वालों को इस शादी में मद्दऊ किया था। वो चाहती थी कि सब अपनी आंखों से देखें कि उनके बेटे की शादी किस लड़की से हुई है। शादी के दौरान एक बार भाई की तबीयत खराब हो गई तो अम्मा फौरन से उन्हें साइड पर बने कमरे में ले गई। भाई लोगों के बीच में घबरा जाता था। अम्मा ने मुझसे कहा कि देखो सब कुछ कितना अच्छा है ना, मेरी कितने अरसे की ख्वाहिश थी कि तुम्हारे भाई की शादी हो जाए। काश तुम्हारे अब्बा भी जिंदा होते तो आज हम सब कितना खुश होते। अम्मा की बात सुनते ही मैं फौरन से अफसरदा हो गई। अगर अब्बा होते तो हमारी जिंदगी बिल्कुल ही अलग होती और हमारी जिंदगी में इतनी मुसीबतें न होती। हम हंसी खुशी रह रहे होते और मैं भी पढ़ाई कर रही होती, लेकिन अब्बा की मौत ने सब कुछ ही बदल कर रख दिया था। मैं शुरू से अब्बा की बहुत ज्यादा लाडली थी। अब्बा एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे। जब भी ऑफिस से वापस आते तो मेरे लिए खाने को कुछ न कुछ लेकर आते थे। मुझे गरम गरम समोसे खाने का बहुत शौक था, इसलिए अब्बा आते वक्त मेरे लिए गरम गरम समोसे और साथ में चटनी लेकर आते। हालांकि अम्मा उनसे कहती भी थी कि रोज रोज इसके लिए समोसे मत लाया करें, लेकिन अब्बा मेरी खुशी के लिए हमेशा समोसे लेकर आते थे। मैं समोसे बहुत ही शौक से खाया करती थी। सुबह अपने कंधे पर बिठाकर मुझे स्कूल छोड़ने जाया करते थे। जब उन्होंने स्कूटर लिया तो सबसे पहले मुझे ही उस पर बिठाया। मैं बहुत खुश हुई। पहले मेरी स्कूल की दोस्तें मुझसे कहती थीं कि तुम्हारे अब्बा तुम्हें पैदल स्कूल छोड़ने आते हैं, लेकिन जब मैं अब्बा के साथ पहले दिन स्कूटर पर स्कूल गई तो मैंने अपनी सारी दोस्तों को जमा करके अब्बा का स्कूटर दिखाया और बताया कि आज से मैं अब्बा के साथ स्कूटर पर ही आया करूंगी। मैं ये सब बहुत ही खुशी खुशी बता रही थी और अब्बा मेरे चेहरे पर खुशी देखकर मुस्कुराने लग गए और कहने लगे कि तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे हर चीज से बढ़कर अजीज है। मेरी अम्मा शुरू से ही मिजाज की बहुत तेज थी, इसलिए अक्सर ही अब्बा से बहस भी करती रहती थी, लेकिन अब्बा बिना आगे से कुछ कहे खामोशी से अम्मा की बातें सुनते रहते थे। मैं अब्बा से कहती कि अम्मा इतना कुछ कहती हैं लेकिन आपको गुस्सा नहीं आता क्या? तो अब्बा मुस्कुरा उठते और कहते कि बेटी हर चीज में अगर गुस्सा करने लग जाए तो रिश्ते खराब हो जाते हैं, तहम्मुल मिजाजी से काम लेना चाहिए। तुम्हारी अम्मा पूरा दिन घर को संभालती है और साथ में तुम्हारे भाई को भी, तो उसका मिजाज खराब हो जाता है। ऐसे में अगर मैं भी आगे से गुस्सा करूंगा तो घर का माहौल खराब होगा, इसलिए मैं खामोश रहने को तरजीह देता हूँ। अब्बा की बहुत सी बातें मुझे समझ में नहीं आती थीं, लेकिन मैं उनकी हर बात पर खामोशी से सर हिलाती रहती थी। मोहल्ले में अब्बा की बहुत इज्जत थी। लोग उनसे बहुत ही इज्जत के साथ पेश आते थे। मेरे अब्बा हर एक जरूरतमंद की मदद करने की कोशिश करते थे। उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं अच्छे से पढ़ लिख कर डिग्री हासिल करूं। वो मेरे भाई के लिए भी बहुत से खिलौने वगैरह लेकर आते थे और घंटों उसके साथ बैठकर बातें किया करते थे। अक्सर मैं अब्बा से कहती कि अब्बा भाई को तो कुछ समझ नहीं आता, तो आप उनसे क्या बातें करते हैं? तो अब्बा बोलते उसकी जबान में अच्छे से समझता हूँ, ये प्यार की जबान होती है, हर एक को समझ में नहीं आती। अम्मा अक्सर मुझसे कहती कि तेरे अब्बा तो फलसफी हैं, उनकी बातें तो मुझे भी समझ नहीं आती, तुझे क्या समझ आएंगी, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं मोहल्ले में ही एक लड़की के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए जाया करती थी और हर क्लास में मेहनत करके फर्स्ट पोजीशन लाती। मेरे अब्बा जब भी मेरा रिजल्ट कार्ड देखते तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते और हमेशा मुझे एक गुड़िया खरीद कर देते थे। मुझे गुड़िया बहुत ज्यादा पसंद थी, इसलिए जब भी मैं फर्स्ट आती मेरे अब्बा मुझे मेरी पसंदीदा गुड़िया लेकर देते। मैंने अब्बा की दी गई सारी की सारी गुड़ियां अब भी संभाल कर रखी थी। हालांकि अम्मा कई बार मुझे कह चुकी थी कि अब तो ये खराब हो चुकी हैं, इन्हें फेंक दे, लेकिन मैं अम्मा से कहती कि ये सब अब्बा ने मुझे तोहफे में दी थी, मैं एक भी गुड़िया नहीं फेंकूंगी। मैं छोटी उम्र में हाथों से उनके कपड़े सीने की कोशिश करती और उन्हें पहनाकर बहुत ज्यादा खुशी महसूस करती थी। भाग भाग कर अपने अब्बा को दिखाती कि मैंने गुड़िया के कपड़े सिए हैं। मेरे अब्बा ये देखकर कहते कि मेरी बेटी बहुत ही हुनरमंद है, देखना बड़े होकर बहुत नाम कमाएगी। लेकिन अम्मा कहती कि बस 10वीं के बाद मैं इसकी शादी कर दूंगी, आप इसे ज्यादा सर पर मत चढ़ाएं, लड़कियों को इतना पढ़ाना ठीक नहीं होता है। तो अब्बा आगे से कहते कि क्यों, लड़कियों की पढ़ाई में क्या मसला है, ये बातें तुम कहाँ से सीखती हो, मेरी बेटी ज्यादा पढ़ेगी और डिग्री भी लेगी, बस यही मेरा फैसला है। अब्बा वैसे तो अम्मा से किसी बात पर बहस नहीं करते थे, लेकिन जब भी बात मेरी पढ़ाई की जाती तो वो हमेशा डट जाते और मुझे अब अफसोस होता था कि अम्मा ने मेरी पढ़ाई रुकवा दी है। हालांकि मैं अपने अब्बा की इस ख्वाहिश को पूरा करना चाहती थी, डिग्री लेना चाहती थी, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका। एक दिन मेरे अब्बा ऑफिस से वापस आए तो काफी थके थके लग रहे थे। उनका सांस भी बहुत फूला हुआ था। मैंने फौरन से उन्हें पानी दिया।
अम्मा भी परेशान हो गई और कहने लगी, क्या हुआ है, आपकी तबीयत तो ठीक है? तो अब्बा ने कहा, कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा थक गया था। और फिर ये तो मामूल बन गया, रोजाना अब्बा की ऐसी ही हालत होती। अम्मा कई बार अब्बा से कह चुकी थी कि डॉक्टर के पास जाकर एक दफा चेक करवा लें, कहीं कोई मसला ना हो, लेकिन अब्बा मान ही नहीं रहे थे। उनका कहना था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं खुद से ही डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। हमारे लाख कहने के बावजूद भी अब्बा डॉक्टर के पास ना गए और यूं ही अपनी तबीयत को नजरअंदाज करते रहे। मैं और अम्मा परेशान होते कि न जाने अब्बा को अचानक से क्या हो रहा है। पहले तो वो कभी भी इतना नहीं थकते थे, सालों से वो ये काम कर रहे थे, अब अचानक से उन्हें क्या हो गया है। एक दिन अब्बा घर वापस आए तो उनके सीने में बहुत दर्द हो रहा था। अम्मा ने उनसे कहा, चलें, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। तो अब्बा ने ये कहकर मना कर दिया कि मैं थोड़ी देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। न जाने अब्बा डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहे थे। और फिर एक दिन अब्बा को अचानक से हार्ट अटैक आ गया। पता नहीं कब से वो इस तकलीफ में मुब्तला थे और अपनी बीमारी को नजरअंदाज किए जा रहे थे, डॉक्टर के पास जाते ही नहीं थे, और अब ये बीमारी उनके लिए जानलेवा साबित हुई थी। मैं और अम्मा अब्बा की मौत को कबूल ही नहीं कर पा रहे थे। यूं लग रहा था जैसे एकदम से भरी दुनिया में बेयारो मददगार हो गए हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं बैठी अब्बा का इंतजार कर रही थी कि कब अब्बा के स्कूटर की आवाज आएगी और मैं भागती हुई गली में जाकर अब्बा के स्कूटर पर बैठूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम्बुलेंस आई और उसमें अब्बा का जनाजा था। उस दिन से मेरी और अम्मा की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल कर रह गई। अम्मा ने जल्द ही मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी। अब्बा के दफ्तर के कई चक्कर लगाए तो तब जाकर पेंशन वगैरह का मसला हल हुआ। अब्बा की पेंशन आने लगी तो अम्मा ने सुख का सांस लिया, क्योंकि अम्मा बाहर जाकर कमा नहीं सकती थी। पीछे भाई का ध्यान भी रखना होता था। भाई को मैं नहीं संभाल पाती थी, उसे सिर्फ और सिर्फ अम्मा ही संभाल पाती थी, इसलिए अम्मा का घर पर रुकना जरूरी था। और मैं काफी छोटी थी, इसलिए अम्मा मुझे घर से बाहर काम के लिए भेजने को बिल्कुल भी राजी नहीं थी। हम इस घर में बहुत सालों से रह रहे थे। मालिक मकान अच्छा था, इसलिए किराए के लिए ज्यादा परेशान भी नहीं करता था। अब्बा की पेंशन से ही हम किराया अदा कर देते और बाकी घर का खर्चा चलाते। बचत वगैरह बिल्कुल भी नहीं हो पाती थी। अम्मा मोहल्ले में कमेटियां डाल डाल कर ही गुजारा कर रही थी। और अब न जाने अम्मा के सर पर भाई की शादी का भूत कहाँ से सवार हो गया था। शादी का इंतजाम तो बहुत आला किया गया था। लोग बहुत सी बातें कर रहे थे, कोई उसे दिखावा कह रहा था तो कोई इस पर रश्क कर रहा था। मोहल्ले में कभी किसी ने इस तरह की शादी नहीं करवाई थी। अम्मा सबके मुंह से तारीफें सुनकर खुश हो रही थी। खाना वगैरह हो गया तो अम्मा ने लड़की की रुखसती का ऐलान किया। हम लड़की को रुखसत करवाकर घर ले आए। घर में भी कुछ देर तक मेहमानों का आना जाना लगा रहा। फिर अम्मा ने सबको वापस भिजवा दिया और कहा कि बहुत रात हो गई है, अब आप सब अपने अपने घरों में चले जाओ। वो तमाम औरतें वहां पर सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखने के लिए बैठी हुई थीं और अम्मा इस बात से बखूबी वाकिफ थीं। इसलिए अम्मा ने सबको जबरदस्ती ही सही लेकिन घर भिजवा दिया, जिस पर वो सब मुंह बनाती वहां से चली गई। उनके जाने के बाद मैं अम्मा के पास आई और मैंने अम्मा से कहा कि आप भी सो जाए, बहुत रात हो गई है। मैं अपने कमरे में दुल्हन के लिए बिस्तर लगा देती हूँ, आप परेशान मत होना। मेरी बात सुनकर अम्मा बोली, क्यों, तू अपने कमरे में क्यों बिस्तर लगाएगी? तू भूल गई है कि हम उसे शादी करके यहाँ लेकर आए हैं, ये अपने शौहर के कमरे में रहेगी। ये सुनकर मैंने फौरन उस लड़की की तरफ देखा जिसका चेहरा फौरन से फीका पड़ा था, क्योंकि अम्मा ने तो यही कहा था कि लड़की सिर्फ नाम की शादी करेगी। मैंने अम्मा को समझाने की कोशिश की कि ये मुनासिब नहीं है, आपको भाई की तबीयत का पता है, आप फिर भी इस तरह की बात क्यों कर रही हैं? अम्मा बोली, तू मेरे मामलात में मत बोल, खामोशी से एक तरफ बैठ जा, जो मैं कहूँगी वही होगा। ये लड़की तेरे भाई के कमरे में ही रहेगी, यही मेरा फैसला है। अम्मा शदीद तरीन गुस्से से बोल रही थी। मैंने अम्मा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अम्मा ने जबरदस्ती उस लड़की को भाई के कमरे में भिजवा दिया। वो काफी ज्यादा घबरा रही थी, क्योंकि भाई की तबीयत अक्सर ही रात को बिगड़ जाती थी, और वैसे भी अभी हम इतने लोगों के बीच में से आए थे तो उनकी तबीयत वैसे ही खराब थी। मैंने अम्मा को एक बार फिर से समझाना चाहा कि लड़की को आज की रात मेरे कमरे में सोने दो, भाई की हालत ठीक नहीं है, मगर अम्मा नहीं मानी और लड़की को वहां भिजवा कर ही दम लिया। जैसे ही दुल्हन अंदर गई, अम्मा ने फौरन से बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने अम्मा से कहा कि आपने दरवाजा क्यों बंद किया है, कम से कम बाहर से दरवाजा तो खोल दें, वो अंदर परेशान हो रही होगी। लेकिन अम्मा ने मेरी बात नहीं सुनी। उस लड़की को कमरे में गए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि जोर जोर से उसके चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैं फौरन से घबरा कर दरवाजे के पास गई और दरवाजा बजाकर पूछने लगी कि तुम ठीक तो हो ना? तो उसने आगे से कहा, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगा। मैं फौरन से अम्मा के पास गई और कहा कि मुझे चाबी दें, मैं दरवाजा खोलूं, वो बेचारी मदद के लिए बुला रही है। अम्मा ने चाबी छुपा ली और कहा कि हरगिज भी नहीं, ये दरवाजा नहीं खुलेगा जब तक मैं नहीं चाहूंगी, तब तक तो ये दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, और तुम ऐसी कोई कोशिश करना भी नहीं। मैंने अम्मा से कहा, मगर वो लड़की मुश्किल में है, आपको सुनाई नहीं दे रहा कितनी चीखें मार रही है, और वो दरवाजा खोलने के लिए कह रही है, आप इतनी बेहिस कब से हो चुकी हैं, दरवाजा खोलें। लेकिन अम्मा ने जबरदस्ती मुझे कमरे में बंद कर दिया।
पूरी रात मैं उस लड़की की खैरियत की दुआएं मांगती रही। मैं जानती थी कि जब मेरे भाई की हालत बिगड़ जाती है तब वो कुछ भी नहीं देखता और सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ऐसे में सिर्फ अम्मा ही उसे संभाल पाती थी। मैं भी उसके करीब नहीं जा पाती थी और अम्मा ने उस अनजान लड़की को अंदर भेज दिया था। अगली सुबह अम्मा ने मेरे कमरे का दरवाजा खोला तो मैं फौरन से कमरे से निकलती भागती हुई भाई के कमरे की तरफ गई। अम्मा ने उसके कमरे का दरवाजा भी खोल दिया था। जैसे ही मैं अंदर गई तो देखा कि भाई एक तरफ गहरी नींद में सोया हुआ था और वो लड़की जमीन पर औंधे मुंह पड़ी थी। मैं भागकर उस लड़की की तरफ आई और उसे सीधा किया तो देखा उसकी सांस बहुत ही आहिस्ता चल रही थी। मैंने फौरन उसे पानी पीने को दिया। उसने मुझसे कहा कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो सब तेरे साथ भी होगा। ये कहते ही उसका सर एक तरफ झूल गया। मैं चिल्लाते हुए अम्मा के पास आई और कहा, देखें तो उसे क्या हो गया है। अम्मा बोली, इतनी फिक्र मत कर, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, कोई हमसे सवाल नहीं करेगा। तेरे भाई की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी तो इसलिए उसने उसे बहुत बुरा मारा है। देख, मोहल्ले वालों को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ये कहकर अम्मा ने एक आदमी को कुछ पैसे दिए और लड़की का जनाजा वगैरह करवा के उसे दफना दिया। मोहल्ले में किसी को कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन औरतें हमारे घर में बहाने बहाने से आने की कोशिश कर रही थीं। वो जानना चाहती थीं कि रात को क्या हुआ था, बल्कि दरअसल वो उस लड़की से बात करना चाहती थी, लेकिन अम्मा ने सबको भगा दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। मैं अगले कई दिन तक काफी घबराई सी रही। मेरे घर में एक लड़की मेरी आंखों के सामने मर गई थी और उसने मरते हुए मुझसे जो कुछ कहा वो मैं भूल नहीं पा रही थी। और मेरी अम्मा थी कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उसे बस भाई की फिक्र थी। अम्मा ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन वो ये बात कब तक छुपा सकती थी। मोहल्ले में तरह तरह की बातें होना शुरू हो गईं। लोग कहते कि इन लोगों ने सबके सामने उस लड़की को शादी करके अपने घर में रखा था, तो अब अचानक से वो लड़की कहाँ गायब हो गई है, कहीं नजर भी नहीं आती। पता नहीं इस औरत ने उस लड़की के साथ क्या किया है। अपने पागल बेटे के साथ उसकी शादी कर दी थी, जरूर उसके बेटे ने ही कुछ किया होगा। अम्मा लोगों की बातें सुनकर गुस्से में आ जाती और कहती, अपनी जबान बंद रखो। मैंने अम्मा को कहा कि लोग गलत नहीं कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सब आपकी जिद की वजह से ही हुआ है। ना आप भाई की शादी की जिद करती और ना ही उस लड़की को अपनी जान से हाथ धोने पड़ते। मैं तो रात को सो भी नहीं पाती हूँ, आप पता नहीं इतनी पुरसुकून कैसे रह लेती हैं। रात को सोने के लिए लेटती हूँ तो उस लड़की की चीखें मेरे कानों में सुनाई देती हैं। हर वक्त उसका चेहरा मेरी निगाहों के सामने रहता है। मुझे लगता है उसकी बद्दुआ हमारे घर को लग जाएगी। हमने उसके साथ बहुत ही गलत किया है, हमें पुलिस को बता देना चाहिए। अम्मा बोली, खबरदार जो तूने पुलिस का नाम भी लिया या किसी को कुछ बताने की कोशिश की, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। मुझे कुछ समझ नहीं आई कि अम्मा क्या करना चाहती है, लेकिन अगले ही दिन अम्मा ने पूरे मोहल्ले में ये बात मशहूर कर दी कि वो लड़की भाग गई है, उसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा था। मैंने अम्मा से कहा कि थोड़ा तो खुदा का खौफ करो, एक मरी हुई लड़की के बारे में इस तरह की बातें कर रही हो, कम से कम अब तो बाज आ जाओ। क्यों इस बेचारी पर बोहतान बांध रही हो, उसने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या था। अम्मा बोली, तू अपना मुंह बंद रखेगी या नहीं, मैं तुझसे बेहतर जानती हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं। अगर सच्चाई पता चली ना किसी को तो तेरे भाई को पकड़ कर ले जाएंगे और मैं फिर सारी जिंदगी अपने बेटे को देख नहीं पाऊंगी। अम्मा खुदगर्जी की इंतहा कर रही थी और किसी चीज को समझने को तैयार ही नहीं थी। मैं अम्मा को समझा कर थक चुकी थी। फिर मैंने अम्मा से बात करना ही छोड़ दी। बेशक अम्मा के लिए वो सब मामूली बात हो, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं थी। मेरी जिंदगी बहुत ही मुश्किल में गुजर रही थी। उन्हीं दिनों कर्जादारों ने आकर हमें परेशान करना शुरू कर दिया। अम्मा ने जिस से कर्जा लिया था वो सब रोजाना हमारे दरवाजे पर आ जाते और कहते कि जो पैसे कर्ज के लिए लिए थे वो जल्द से जल्द वापस कर दो, बहुत देर हो चुकी है, अब तक तुम लोगों ने कर्जा नहीं चुकाया। उनकी बातें सुनकर मैंने अम्मा की तरफ देखा और कहा कि क्या सोचा है आपने कि हम ये कर्जा कहाँ से उतारेंगे। लाखों रुपए का कर्जा आपने चढ़ा दिया है हमारे सरों पर, आप बताएं कैसे इस कर्जे को उतारें। अम्मा बोली कि तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तेरे अब्बा की पेंशन आती है ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा करके उतार ही देंगे। हालांकि अब्बा की पेंशन चंद हजार थी और कर्ज लाखों में था। मैंने अम्मा को समझाया भी कि अम्मा, पेंशन में हम क्या कुछ करेंगे, घर का खर्चा उठाएंगे या फिर कर्जा भरेंगे, हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा, खानदान में किसी से मदद मांगते हैं। अम्मा बोली, खबरदार जो तूने इस तरह की कोई बात की, तेरे खानदान वाले इतने अच्छे नहीं हैं, वो सब लोग तो पहले ही इस इंतजार में हैं कि हमें किस तरह से बेइज्जत किया जाए। मैं किसी के सामने जाकर मदद नहीं मांगूंगी। वैसे भी मैंने रिश्ते करवाने वाली एक औरत से बात की है, वो जल्दी कोई रिश्ता ढूंढेगी तो मैं तेरी शादी कर दूंगी। मैंने अम्मा से कहा, अभी हमारे हालात ठीक नहीं हैं, हम शादी नहीं कर सकते। लेकिन अम्मा अपनी जिद पर अड़ गई और उसने मेरे लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए। अम्मा चाहती थी कि किसी अमीर खानदान में मेरा रिश्ता तय किया जाए ताकि उनसे पैसे ऐंठ कर ये कर्जा आराम से उतार लें। अम्मा के मंसूबे मुझे समझ नहीं आते थे, पता नहीं उनका दिमाग इतना शातिर क्यों था और सिर्फ साजिशें बनाने में ही क्यों मसरूफ रहता था। काफी ज्यादा रिश्ते देखने के बाद अम्मा को अपनी मर्जी का एक रिश्ता मिल ही गया। वो लोग खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते थे, इस शादी पर बिना किसी शर्त के राजी थे, उन्हें जहेज भी नहीं चाहिए था। अम्मा ने झट से हाँ कर दी, लड़के के बारे में ज्यादा तहकीक वगैरह भी नहीं की।
उन लोगों ने हमें अच्छे खासे पैसे दिए। अम्मा ने उन पैसों से सारा का सारा कर्जा उतार दिया और कहा कि देखा, मैं कहती थी ना मैं ये कर्जा उतार दूंगी। मुझे तो शादी में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कई बार अम्मा से इस बात का इजहार करने की कोशिश की, लेकिन अम्मा ने टाल दिया। शादी होकर जब मैं अपने ससुराल गई तो काफी घबरा रही थी। मुझे एक कमरे में बिठा दिया गया। काफी देर गुजरने के बाद मेरा शौहर अंदर आया। उसका रवैया काफी अजीब सा लग रहा था। वो मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लग गया। उसकी मुसलसल हंसी की वजह से मैं परेशान हो गई। ना तो वो कोई बात कर रहा था और ना ही अपनी हंसी को रोक रहा था। फिर वो मेरे पास आया और कहने लगा, मुझे लॉलीपॉप खाना है। ये सुनते ही मैं परेशान हो गई। मुझे लगा कि शायद वो मजाक कर रहा है, लेकिन फिर वो बार बार एक ही बात को दोहराए जा रहा था और जब मुझे समझ आई तो गोया मेरे सर पर कमरे की छत टूट पड़ी। उसका रवैया बिल्कुल मेरे भाई की तरह ही था, यानी ये भी ज़हनी मरीज था। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई। अगले दिन मैंने सबसे पहले फोन करके अम्मा को इस बारे में बताया तो अम्मा भी परेशान हो गई और कहने लगी कि फौरन से पहले घर आ जा। लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझे वहां से कैसे निकलने दे सकते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी अम्मा ने भी तो अपने पागल बेटे की शादी एक लड़की से की थी। अगर हमने अपने बेटे की शादी कर दी है तो इसमें गलत ही क्या है, हमारा बेटा भी पागल नहीं है। जब अम्मा को यह सब पता चला तो वो भागी भागी मेरे ससुराल आ गई और मेरी सास से कहने लगी कि देखो, मेरी बेटी को माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा बेटा पागल है। अगर इसने मेरी बेटी को कुछ कर दिया तो मैं क्या करूंगी। मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। तुम्हारे पागल बेटे के साथ मैं इसे नहीं छोड़ सकती। उस वक्त मुझे याद आया कि मैंने अम्मा से कितना कहा था कि इस लड़की को भाई के साथ मत छोड़ो, लेकिन उस वक्त तो अम्मा एक कठोर इंसान बन गई थी और अब जब उनकी अपनी बेटी पर ऐसा वक्त आया था तो दूसरों से रहम की भीख मांग रही थी। मुझे अम्मा के इस दोगलेपन पर बहुत ही हंसी आई और जब अम्मा ने मुझे हंसते देखा तो कहने लगी, आखिर तुम क्यों हंस रही हो। मैंने अम्मा से कहा, ऐसे ही वो लड़की भी आपसे मिन्नतें कर रही थी कि उसे बचा लें, लेकिन आपने क्या किया। उस वक्त तो आप जल्लाद बन गई थी। आपको वो सब कुछ याद है या फिर भूल चुकी हैं। किसी दूसरी लड़की की जिंदगी तबाह करते तो आपको कोई तकलीफ नहीं हुई और अब जबकि आपकी अपनी बेटी ऐसी तकलीफ में मुब्तला है तो आप किस तरह से गिड़गिड़ा रही हैं। मेरी बात सुनकर अम्मा खामोश हो गई और चुपचाप वहां से चली गई, क्योंकि मेरी सास ने कहा था कि हमने तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं, या तो पैसे वापस ला कर दो या फिर अपनी बेटी यहीं पर रहने दो। मुझे मुसलसल उस लड़की की वो बात याद आ रही थी जो उसने मरने से पहले मुझसे कही थी। अब मेरी यही जिंदगी थी और मैंने इसे कबूल कर लिया था। शायद आगे जाकर मेरी जिंदगी बदल जाए, लेकिन फिलहाल तो हर वक्त उस लड़की का चेहरा मेरी निगाहों में रहता है।